ये जनिता। Okay. Let us all close our eyes and submit this time into the Lord's hands. Heavenly gracious Father, I thank and praise you for this time that you have given us today. Thank you for bringing us together in your presence, O Lord. Thank you, Lord Jesus, for today's day, O Father God. Thank you, Lord, for your sacrifice on the cross for us, O Lord God, because of which, O Lord God, our, our sins are washed away, O Lord, because of which, Lord God, we have hope, O Lord, for eternity with you. Thank you for today, O Father God. We praise and thank you for gathering us today for the study. Help, O Lord God, that everything that we learn today from Shekhar Dadu, Lord God, yes, O Lord, that we may apply it in our life, we may understand it, O Lord Jesus, and we may, Lord God, hold your word, O Lord Jesus, close to our heart, O Lord God. Yes, Father God, I pray that you cover each of us with your holy and precious blood. Cover Shekhar Dadu with your precious blood, O Lord. Yes, O Lord, you lead him, Lord God. Let your spirit guide him today, Lord God. Yes, O Lord Jesus. We pray for his good health, O Lord God. For him to have, Lord God, peace, Lord God, from you alone, O Lord Jesus. And Lord God, we are very grateful, O Lord God, that you have given us this opportunity to learn your word, O Lord God. Thank you, Father God, that you brought us together as one body, Lord God. Yes, O Lord Jesus. That now, O Father God, yes, O Lord God, we have unity, Lord God, in you, Lord Jesus. And that, Lord God, all of us, O Lord God, we may praise you and glorify your name, O Lord Jesus. I thank you for all that you have done for us. In the mighty and precious name of Jesus Christ of Nazareth, I make this prayer. Amen. आमीन। तो थैंक यू जेनिता फॉर योर प्रेयर। गॉड ब्लेस यू। एंड एक बार फिर से मैं सबका स्वागत करता हूँ आज के अध्ययन में। और तब हम लोग आज पैशन वीक के विषय में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग दुख भोग सप्ताह जो कहा जाता है उसी में चल रहे हैं। उससे संबंधित कुछ सत्य बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। दुख भोग सप्ताह। Passion Week. खजूर रविवार से पुनरुत्थान दिवस तक। Palm Sunday to Easter Sunday. ये कॉमन वे पे नॉर्मली सारे जो मसीही क्रिश्चियन वर्ल्ड में ये जो वीक है इसको हम लोग इसी नाम से जानते हैं, पैशन वीक। पर एक्चुअल में पैशन जो दुख का समय था यीशु का, वो पूरे सप्ताह था या कितना, इसके विषय में हम लोग ध्यान करेंगे। ये सेरेमोनियल इसको रूप दिया गया है हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में, पर ये बाइबल सम्मत नहीं है। इसलिए इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मत्ती 21:12-17 तक। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशन्ना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित होकर उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई? तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। Matthew chapter 21 verses 12 to 17. Jesus entered the temple and began to drive out all the people buying and selling animals for sacrifice. He knocked over the tables of the money changers and the chairs of those selling doves. He said to them, the scriptures declare, my temple will be called a house of prayer, but you have turned it into a den of thieves. The blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. The leading priests and the teachers of religious law saw these wonderful miracles and heard even the children in the temple shouting, praise God for the Son of David. But the leaders were indignant. They asked Jesus, do you hear what these children are saying? Yes, Jesus replied.
Haven't you ever read the scriptures? For they say, you have taught children and infants to give you praise. Then he returned to Bethany, where he stayed overnight. तो ये था पाम संडे के दिन का इवेंट, जब वो यरूशलेम में प्रवेश किया, मंदिर में जाकर उसने अपना काम किया और तब वहां पर उसने चंगाई का भी काम किया। और जो बातें हुई उसके बाद लिखा है कि वो संध्या होते होते बैतनिया चला गया और बैतनिया में रात बिताई। यदि आप ध्यान से चारों सुसमाचार को पढ़ेंगे तो पूरे सप्ताह भर रात में वो बैतनिया, जहाँ पर उसका मित्र लाजर और उसकी बहनें, उनके घर जाके रुकता था और तब वापस आकर वो यरूशलेम में दिन बिताता था, दिन भर अपना काम करता था। मरकुस 14:12 से 17 तक। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। सो चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। Mark chapter 14, verses 12 to 17. On the first day of the festival of unleavened bread, when it was customary to sacrifice the Passover lamb, Jesus' disciples asked him, where do you want us to go and make preparation for you to eat the Passover? So he sent 2 of his disciples, telling them, go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you. Follow him. Say to the owner of the house, he enters. The teacher asks, where is my guest room, where I may eat the Passover with my disciples? He will show you a large room upstairs, furnished and ready. Make preparations for us there. The disciples left, went into the city, and found things just as Jesus had told them. So they prepared the Passover. When evening came, Jesus arrived with the 12. While they were reclining at the table eating, he said, truly I tell you, one of you will betray me, one who is eating with me. यूहन्ना 13:1 से 5 तक। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। John chapter 13, verses 1 to 5. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him.
यूहन्ना 14:1-3 तक। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। John chapter 14, verses 1 to 3. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. तो यहाँ तक पाम संडे से लेके बृहस्पतिवार की संध्या तक, नेक्स्ट डे जो था वो फीस्ट ऑफ पास ओवर था, फसह का पर्व। और फसह के पर्व के पहले वाले शाम को ये लोग भोजन के लिए ये फसह खाने बैठे थे। यहाँ तक उसने नॉर्मली सारा काम किया, उनको एनकरेज किया। चेले दुखी थे, ट्रबल थे, व्याकुल थे मन में कि क्या होने वाला है, पर यीशु व्याकुल नहीं था कहीं पर भी। तो ये पैशन वीक जो बोलते हैं, पैशन, इट इज नॉट पैशन वीक, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं हम कि यीशु जो है बृहस्पतिवार की संध्या भोजन में बैठते तक एकदम नॉर्मल था। और तब यहाँ पर 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, 17 अध्याय, 4 चैप्टर उसने उस सफर टेबल में अपने चेलों को शिक्षा दिया। फाइनल जो अंतिम उसके शिक्षाएं थी चेलों के लिए, उसने टेबल में बैठकर भोजन करते हुए ये सारी बातें कही। और उसके बाद 18 अध्याय में लिखा है यूहन्ना के, इन सब को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 18 अध्याय के पहले पद में लिखा, पढ़िए। यूहन्ना 18:1। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। मतलब इस भोजन के बाद ये सारी बातें करने के बाद 17 अध्याय में उसने अपने पिता से प्रार्थना किया इन सब के लिए। और उसके बाद वो अपनी सारी जिम्मेदारी पूरा करने के बाद गेत्सेमनी के बगीचे में गया, पढ़िए। John chapter 18, verse 1. When he had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley. On the other side, there was a garden, and he and his disciples went into it. ये आगे की बातों को समझने के लिए एक विशेष विषय है जिसको समझना जरूरी है, पढ़िए मत्ती 20 अध्याय। मत्ती 20:3-6 तक। फिर पहर एक दिन चढ़े, निकलकर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया, और 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया। Matthew chapter 20, verses 3 to 6. And he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. Again he went out about the 6th and the 9th hour, and did likewise. And about the 11th hour he went out and found others standing idle, and said unto them, Why stand ye here all the day idle? तो परमेश्वर के वचन में यीशु ने 2 शब्द यहाँ पर प्रोनाउंस किया। पहर, पहर एक दिन चढ़े, और उसके बाद बोला घंटा एक दिन, 1 घंटा दिन रहे। ये इसका मतलब क्या है, इसको समझेंगे तो हमको ये समय का कैलकुलेशन सही समझ में आएगा। Jewish time as per the Bible. In the day, the third hour is 6 to 9 a.m. The 6th hour is 9 to 12 a.m. The 9th hour is 12 to 3 p.m. The 12th hour is 3 to 6 p.m. And the night, the first watch is the evening. The second watch is midnight.
The third watch is cock crowing, and the fourth watch is morning. The civil day was from ये जो sunset. ये जो टाइम वैल्यूज है इसको याद रखेंगे तो आगे की बात ठीक ठीक समझने में सहायता होगी। ये दिन और रात दोनों चार चार घंटों का पहर होता था। 3 3 घंटे का पहर होता था। तो सवेरे 6 से 9 तक ये थर्ड आवर कहा जाता। 9 से 12 तक ये सिक्स्थ आवर। इसको बाद में चार्ट में भेजूंगा तो आप लोग जरूर नोट कीजिए और उसको ध्यान में रखिए। जब जब बाइबल में ये शब्द आते हैं तब ध्यान करो कि समय किस समय की बात कर रहे हैं। Trail of Jesus. Thursday 6 p.m. to 9 p.m. at the supper. Thursday 9 p.m. to 12 p.m. at the garden. Thursday 12 p.m. to Friday 6 a.m. 6 hearings before Jews authorities in the night. First, hearing before Annas, powerful ex-high priest. Hearing before Caiaphas, the ruling high priest. Hearing before the high council, Sanhedrin. Before Roman authorities at the morning. Hearing before Pilate, highest Roman authority. Hearing before Herod, ruler of Galilee. Hearing before Pilate, highest Roman authority. ये 6 जगह उसका मुकदमा हुआ और ये सारे अगल बगल नहीं रहते थे। और ये लोग यदि आप ध्यान करेंगे इसका एक्चुअल जो ट्रायल था वो यहाँ से शुरू हुआ। लुका 22 उसके 44 पद में लिखा पढ़िए। उसका लूका 22 उसका जो दुख जिसको बोलते हैं उसको दुख का जो शुरुआत था वो यहाँ से हुआ। पढ़िए। लूका 22 का 44। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लोहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। Luke chapter 22, verse 44. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. तो ये जो पेशन बोलते हैं, पेशन वॉज बिगेन इन गार्डन। जब वो प्रार्थना कर रहा था तब वहां लिखा है कि अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय की वेदना से प्रार्थना करने लगा। और उतना उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नहीं भूमि पर गिर रहा था। इतना कठिन स्थिति वहां से शुरू हुआ इसका। इसके पहले वो कहीं पर भी ट्रबल नहीं था। वो कहीं पर भी दुखी या प्रॉब्लम में नहीं था। अपना काम करता रहा और फाइनली लॉर्ड सपर के समय में वो भोजन में बैठा हुआ भी चुपचाप भोजन नहीं किया। उसने वहां पर भी चेलों के साथ बातचीत किया, अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। और तब जब वो गार्डन में पहुंचा वहां उसका पैशन शुरू होता है। और तब ये नक्शे को ध्यान करना आप लोग। ये गलील का जो ऑलिव माउंटेन है वो गार्डन जो है उसके नीचे था। और ये पहाड़ पर बसा हुआ नगर बोलते हैं यरूशलेम को। ये गेत्सेमनी का बगीचा नीचे था। और तब वहां से पकड़कर उसको लाया गया। सबसे पहले उसको कैफा के पास, हन्ना के पास और सनेड्रिन में। उसके बाद वहां से पिलातुस के पास। पिलातुस ने बोल दिया हेरोदेस के पास ले जाओ। हेरोदेस ने बोला कि ये मेरे को फंसा रहा है, वो वापस भेज दिया। ये ऐसा ये यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, दोनों हाथ पीछे बंधे हुए। और यरूशलेम जो थे वो पहाड़ पर बसा हुआ नगर बोलने से या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है पैदल चलते हुए। ये उसका दुख का जो शारीरिक कष्ट और ऊपर से उसको कोड़े मारे गए और सारा चीज हम लोग जानते हैं। ये यहाँ तक घुमाते रहे। फाइनली पिलातुस के टेम्पल से गोलगाथा की पहाड़ी, ऊपर ऊपर पहाड़ी थी वो, वहां लेके गए। तो उसका जो दुख का स्थिति था वो रात को खाना खाने के बाद शुरू होता है और दूसरे दिन क्रूसिफिक्शन तक। पढ़िए। यीशु का परीक्षण
वास्तव में सुनवाई की एक श्रृंखला थी जिसे यीशु की मृत्यु को पूरा करने के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया गया था। फैसला पहले से तय था, लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रियाएं आवश्यक थीं। एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराने और सूली पर चढ़ाने में बहुत प्रयास किया गया। यीशु हमारे स्थान पर एक अनुचित परीक्षण से गुजरे ताकि हमें एक निष्पक्ष परीक्षण का सामना न करना पड़े और हमारे पापों के लिए उचित दंड न मिले। Jesus' trial was actually a series of hearings, carefully controlled to accomplish the death of Jesus. The verdict was predicated, but certain legal procedures were necessary. A lot of effort went into condemning and crucifying an innocent man. Jesus went through an unfair trial in our place so that we would not have to face a fair trial and receive the well deserved punishment for our sins. Trial of Jesus. Thursday 6 p.m. to 9 p.m. at the supper. Thursday 9 p.m. to 12 p.m. at the garden. Thursday 12 p.m. to Friday 6 a.m. 6 hearings before Jews authorities in the night. Hearing before Annas, powerful ex-high priest. Hearing before Caiaphas, the ruling high priest. Hearing before the high council, Sanhedrin. Before Roman authorities at the morning. Hearing before Pilate, highest Roman authority. Hearing before Herod, ruler of Galilee. Hearing before Pilate, highest Roman authority. The event, the probable reason, and reference. Trial before Annas, powerful ex-high priest. Although no longer the high priest, he may have still wielded much power. Reference, John chapter 18, verses 13 to 23. Trial before Caiaphas, the ruling high priest. To gather evidence for the full high council hearing to follow. Matthew chapter 26, 57 to 68. Mark chapter 14, 53 to 65. Luke chapter 22, verses 54 and then 63 to 65. John chapter 18, verses 24. Trial before the High Council, that is the Sanhedrin. Formal religious trials and condemnation to death. Matthew chapter 27, verse 1. Mark chapter 15, verse 1. Luke chapter 22, 66 to 71. Trial before Pilate, highest Roman authority. All death sentences needed Roman approval. Matthew chapter 7, verse 2 to 11 to 14. Mark chapter 15, 1 to 5. Luke chapter 23, 1 to 6. John chapter 18, 28 to 38. Trial before Herod, ruler of Galilee. A courteous and guilt-sharing act by Pilate because Jesus was from Herod's district. Luke chapter 23, verses 7 to 12. Trial before Pilate. Pilate's last effort to avoid condemning an obvious innocent man. Matthew chapter 27, 15 to 26. Mark chapter 15, 6 to 15. Luke chapter 23, 13 to 25. John chapter 18, 39 to 19 till 16. John chapter 18 verses 39 and chapter 19 to verse 60. Seven sayings of Jesus in 6 hours. और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। And it was the 3rd hour and they crucified him. Mark chapter 15 verse 25. इसके अनुसार ठीक सवेरे 9 बजे उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और तब क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद सबसे पहला उसने वाणी कहा। तीन वाणियां उसने 12 बजे के पहले बोला। क्या क्या पढ़ दो बहन जी। Luke chapter 23 verses 34. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Luke chapter 23 verse 43. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. John chapter 19 verses 26 and 27. He said unto his mother, Woman, behold your son. Then said he to the disciple, Behold my mother.
Time. Mark chapter 15, verse 33. And when the 6th hour was come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. 6 आवर मतलब 12 बजे, दिन के 12 बजे घोर अंधकार ने छा लिया, और उसके बाद उस अंधेरे में उसने बाकी के वाणियां कहा। पढ़ो। Matthew chapter 27, verse 46. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? John chapter 19, verse 28. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. John chapter 19, he said, It is finished. And Luke chapter 23, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. शुभ शुक्रवार। Good Friday. ये मेरी पोती ने कल पूछा मुझसे कि ये जीसस का डेथ का डे को गुड फ्राइडे को शुभ शुक्रवार क्यों बोलते हैं, कि वाई इट इज गुड। वो मैंने खोजने का प्रयास किया। पढ़िए यशायाह 53 उसका 4 से 8 तक, ये गुड क्यों कहलाया हमारे लिए। पढ़िए। यशायाह 53 4 से 8 तक। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय वह भेड़ी उड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। Isaiah chapter 53, 4 to 8. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away. Yet who of his generation protested? For he was cut off from the land of the living. For the transgressions of my people he was punished. तो ये था कारण जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में एक ही डेथ है, डेथ का दिन, जिसको गुड कहा जाता है, गुड फ्राइडे। May God help all of us to know the real thing so that we may feel the passion of Christ. तो प्रभु सबकी सहायता करे कि इन बातों को ठीक ठीक मनन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि रियल में पैशन रियल है, जो इवेंट था वो कैसा था। और सेरेमोनियल किसी बात पे मत जाओ, पर इन सब बातों को समझ के प्रभु को धन्यवाद देने का ये दिन है। यदि इसको मैं बोलूं, पहला कुरिन्थी 5 के 7 और 8 पद को पढ़ो रेचल निकाल के। पहला कुरिन्थी कितना बोले मामू? 5, जी। 5, पहला 7 and 8। पहला कुरिन्थी 5 7 और 8।
सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। आगे। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, बस यह नहीं कि तुम 7 और 8 दोनों पढ़ा। अजी, 7 नहीं पढ़ी मामू मैं, पढ़ो। 8 और 9। हाँ, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो ये कि नया पुराना गोंद। खमीर बोलने से पुरानी शिक्षा, पुरानी बातें जो दिमाग में हमारे भरी हुई, उसको निकालो और शुद्ध करो, नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, बोलता है। आगे। कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। ये बोलता है कि ये हमारे लिए आनंद मनाने का उत्सव है, डे ऑफ फास्टिंग नहीं है। या इसको जो सेरेमोनियल हम हमारे मसीही डॉक्ट्रिन्स ने बना के दिया हमको, कि ये पूरे सप्ताह, कई लोग सप्ताह भर फास्टिंग करते हैं, कई लोग एक गुड फ्राइडे के दिन फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग पूरे 40 दिन फास्टिंग करते हैं। पर परमेश्वर का वचन में पौलुस ने लिखा, ये हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ, इसलिए उत्सव में आनंद मनाए। सो ये धन्यवाद देने का विषय है कि उसने हमारे बदले अपना प्राण दिया, जिसके कारण हमें पापों की क्षमा मिलती है। तो प्रभु सहायता करे सबकी कि इन बातों को ठीक ठीक हम समझें और अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। सो टुडे वी विल प्रे अगेन विथ पास्टर। हालेलुया, प्रेज जीसस। दयालु प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं आपका, एक बार फिर आपने अवसर दिया प्रभु। सो जो बातें आज तक के हम जो प्रभु जिन विधि पूर्वक परंपरागत चीजों से करते आ रहे थे प्रभु, उन चीजों को आपने हमारी उनके लिए आपने हमारी आंखें खोली प्रभु। ये बताया कि प्रभु कितना गलत थे हम प्रभु, जबकि हमको आनंद मनाना है हम दुख मनाते रहे। हम प्रभु इस दिन को प्रभु उसमें शोक मनाते रहे। जब जब प्रभु ने हमसे कहा है कि ये आनंद का दिन है, क्योंकि इसके आगे सब कुछ नया है तुम्हारे लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उस पुराने खमीर को प्रभु निकाल कर प्रभु नए खमीर से हमें आपने भर दिया है प्रभु। ऐसा जीवन जो प्रभु सब कुछ नया है, आप में नया है प्रभु। आप हमारे फसा के बलिदान हो प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमने आपने हमारा इंतजार नहीं किया कि हम बदले, फिर आप हम आपका वो बलिदान दें प्रभु। आपने वो बलिदान अपने आप में पहले दिया प्रभु, और अभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम आपका अनुसरण करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका इस महान बलिदान के लिए, इस महान प्रेम के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, रोज आप हमें आपके वचनों से चेताते हैं प्रभु, दिखाते हैं किस तरह से हमने चलना है, किस तरह से हमने तैयारी करनी है। एक बार फिर आपने आपके जन प्रभु शेखर भैया का इस्तेमाल किया प्रभु, हम सब भेड़ों को प्रभु तैयार करने के लिए, उन बातों को, भेदों को उजागर करने के लिए प्रभु, ताकि हम सही रीति से वचन को समझ पाए। कई गलत धारणाएं बनाकर प्रभु उस तरह से हम, जैसे पुराने समय में लोग जीते थे प्रभु, वैसे ना जिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये योजना आप ही ने बनाई है हमारे लिए प्रभु। आपकी आपका धन्यवाद करते हुए हम नहीं थकेंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु ये योजना आपने हमारे लिए बनाई, आप चाहते हैं कि हम सब बच जाएं। धन्यवाद प्रभु, हम सही रीति से आपका अनुसरण करें, सही बातों को समझकर प्रभु हम तैयार होते जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर सभी लोगों के लिए जो आज यहाँ पर जुड़ पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने जो मन्ना हमें आज खिलाया है प्रभु, उस पर हम फागुर करते रहे प्रभु, और आने वाले दिनों में उसी तरह से जिए। न कि प्रभु जिस तरह से हम पहले समझ रखते थे, इसके आगे इस समझ को कभी भी प्रभु हम फिर से हमारे जीवन में घुसने नहीं देंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपका, आपके जनशेखर भैया का प्रभु, जो आपने प्रतिनिधित्व किया प्रभु उनके माध्यम से, और हमें बताने के लिए हम सही रीति से जी पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आज नहीं जुड़ पाए उनके लिए भी सहायता कर प्रभु, कि आने वाले दिनों में वो भी इस संगति के महत्व को समझकर प्रभु वो भी जुड़ पाए। धन्यवाद प्रभु, ये सारी योजना आपकी है, हमारे लिए भलाई उत्पन्न करने के लिए है प्रभु।
ये हम समझ चुके हैं प्रभु, और आपको सारी महिमा, सारा गौरव, सारी प्रशंसा देते हैं प्रभु। और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के नाम में करते हैं। आमीन और आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर क्लॉडियस। इन सबको प्रभु आशीष दे, इन सब बातों को ठीक ठीक समझिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। सो गॉड ब्लेस यू अगेन एंड वी विल मीट ऑन मंडे। सीधे हम लोग सोमवार को फिर से अपने अध्ययन के कंटिन्यूएशन में आएंगे। तो तब तक के लिए प्रभु आप सबों की रक्षा करे। थैंक यू वेरी। Shalom. Thank you. चलो Shalom. चलो Shalom, Shalom, shalom. brother. Shalom. Shalom. God bless. Shalom. God with us.